let's talk about how you can study in Vilnius, how you can apply, what are the requirements. So, hello, I'm Diksha, and I have been in Vilnius for 2 years now. I'm studying here like bachelor's in mechatronics and robotics. I came here after my 12th standard, talking about the place I'm living right now. It's Vilnius, capital city of Lithuania, and it's really nice. There are a lot of lakes, a lot of beautiful places to be in, and mainly the universities here. I have seen a lot of students with this like SMK, Vilnius Tech, and Vilnius University. These are the top three, and then there is this one university in Kaunas for medical students, which is also nice. Let's talk about Vilnius Tech first. That's where I'm studying. I really like it. It's really nice. You can actually like go to university. You can live in the dorms. It's really close. You can manage your studies with your work. You can have like the minimum attendance, and it's still not a very big of a deal. Like for the first year, there were no requirements at all. But in the second semester, the dean did have this requirement of having at least 60% attendance, and right now we still have it, but I don't see most of the students still coming, or they just come for like really important teachers, like really important lectures, like practical lessons. You have to attend those. You have to do them. If you don't have like your 5 practical laboratories, you can actually not pass. So lectures aren't like mandatory, but like some teachers do ask you to attend. Like it's nice to get in those good books. About Vilnius University, it's really nice. It's really big. I love their library. Actually इधर सबको computers नहीं भी है तो चलेगा. Like without laptops you can survive. It's not recommended but you can. Like मेरे पास अभी तक laptop नहीं है. तुम यूनिवर्सिटी के लैपटॉप्स पे जा सकते हो, और यू गेट लाइक ऑफिस लैपटॉप्स. तो इफ़ यू डोंट हैव वन, इट्स लाइक नॉट रियली आर गोना बी लाइक नो आई कांट लिव. इट्स नॉट द बेस्ट बट या यू कैन सर्वाइव स्टिल, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लाइक हमें ईमेल एंड पासवर्ड मिलता है, जिसके साथ हम हर एक कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. लाइब्रेरी में काफ़ी सारे हैं कंप्यूटर्स, विलनियस टेक में भी, विलनियस यूनिवर्सिटी में भी. SMK में भी होना चाहिए, but I don't have many friends there and I don't have that much information. If you really require that, just comment below. I will then like look for someone from there. Mm. And talking about the Kaunas University. So Kaunas University is really nice, but if you compare विलनियस में और कॉनस में रहने में, आई वुड से इट्स बेटर कि तुम सीधा विलनियस में ही आओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉनस में आया भी था, आफ्टर सम टाइम आफ्टर फिनिशिंग देयर डिग्री दे आर शिफ्टिंग टू विलनियस. लाइक इधर ज़्यादा ऑप्शंस है, कैपिटल सिटी है, एंड कम रेसिज्म है इधर इफ़ यू कंपेयर विद कॉनस. I have never experienced it till now, but people are there who say they have faced it in Kaunas. So it's not the best, I would say. Like you can still survive if you're just gonna be like, I'm just gonna study, I don't care, then it's nice. But like otherwise I would say stay with Vilnius. And also job opportunities भी कहीं ज़्यादा आ जाता है, because Kaunas में लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट लाइक इट्स मोर लाइक कि लिथुआनियन में आना चाहिए थोड़ा सा. बट विलनियस में ये केस नहीं है, तुम्हें मिल जाती है एटलीस्ट, और जॉब्स सब मिल जाती हैं. एप्लीकेशन प्रोसीजर तो इधर का मेनली ड्रीम लॉगिन आईडी है, जिससे तुम अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. विलनियस टेक में भी, विलनियस यूनिवर्सिटी में भी. अभी मैंने रिसेंटली अपने सिस्टर और अपनी फ्रेंड का दोनों यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म्स भरा. तो मेन रिक्वायरमेंट्स है, पहले वो तुम्हें पूछते हैं कि तुम्हारा इंग्लिश का सर्टिफिकेट है क्या, आइल्स है. इट्स जस्ट 5.5 रिक्वायरमेंट, बट लाइक यू कैन पुट एन लाइक ऑप्शन कि तुम्हारा जो स्टडीज़ था वो इंग्लिश में ही था, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव इट. You have to give a motivation letter, you have to give your passport, 10th and 12th mark sheets, you have to enter all those information. तुम्हारा passport कब expire हो रहा है, like it's just everything you will already have with you. You just have to fill it out there. Yeah. And the same thing is with the Vilnius University. They can ask you a few extra things if required. India के लिए यही सब requirements हैं, mainly यही सब कुछ पूछेंगे. Other than that, you have to upload your passport size photo. It's not a big deal, but like you have to. उसके बाद विलनियस यूनिवर्सिटी तुम्हें बहुत जल्दी ही लाइक तुम जब उनका वो €100 का इन्वाइस पे कर देते हो, तुम्हें एक ईमेल डाल देते हैं कि यार वी हैव रिसीव्ड. उनका फ्लाई वायर से जाता है पेमेंट. तुम अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र किसी से भी लाइक पे कर सकते हो. इट्स जस्ट €100. इट विल कम अराउंड 9,000 समथिंग. उसके अलावा द सेम इज़ विद द विलनियस टेक.
उस पर भी तुम सीधा पे कर सकते हो एंड दे विल मैसेज यू. बट विलनेस यूनिवर्सिटी का आई जस्ट फिल्ड माई फॉर्म फॉर माई सिस्टर. सो उस पर मेरे को पता है कि तो अंडर 1 week ओनली वो तुम्हें मेल डाल देंगे कि वी आर गोना हैव अ इंटरव्यू विद यू. सो यू विल हैव अ इंटरव्यू, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस. टिल नाउ आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन कि वो क्या क्या पूछेंगे, बट वंस आई नो दैट आई विल लेट यू गाइस नो कि क्या क्वेश्चंस है. सो अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है तो कमेंट बिलो क्या क्या पूछा उन्होंने, लेट अदर्स नो एज वेल. एंड विलनियस यूनिवर्सिटी का मैंने खुद इंटरव्यू दिया था. इट वॉज लाइक फन वीडियो इंटरव्यू जिसमें 3 लाइक ऐसा अलग अलग पार्ट सा. आई कुड री रिकॉर्ड माई सेल्फ आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस. उसमें लाइक उन्होंने मेरा इंग्लिश चेक किया, मेरे को यूनिवर्सिटी में क्यों आना है, बेसिकली मेरा मोटिवेशन क्या है, ये सब क्वेश्चन था. मेरा ऐसा लाइव इंटरव्यू नहीं हुआ था. मेरे को उसके अलावा एक अलग से वीडियो बना के भेजना पड़ा था, लाइक रिकॉर्डेड वीडियो, कि मैं यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रही हूँ, मैं यही कोर्स क्यों चूज़ कर रही हूँ, अगर मैं करने का मेरा मेन रीज़न क्या है एंड मेरा बाद में फ्यूचर प्लान्स क्या है. वीज़ा प्रोसीजर का अगर वीडियो चाहिए कैन मेक अनदर वन. अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा पेरेंट्स को तुम कैसे बुला सकते हो, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ. उसके अलावा अगर हम और थोड़ा यूनिवर्सिटी में ही जाएँ तो जब तुम्हारा इंटरव्यू हो जाता है, बट नेक्स्ट स्टेप्स यू कैन लाइक जैसे कि विलनियस यूनिवर्सिटी का ओपन डेज होता है, इवन वेलनेस चेक का भी होता है. यू कैन जस्ट पुट देम. एंड इंडिया का मेनली सिर्फ एक हमारा वो है इंडो यूरोपियन जो हमारा वीज़ा प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं. सो वंस तुम लोग लाइक एडमिशन तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी खुद ही इंडो यूरोपियन को तुम्हारा नाम डिटेल्स दे देती है एंड इंडो यूरोपियन तुम्हें कॉन्टेक्ट करेगा एंड उसके बाद तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस सब शुरू होगा. एंड एक्चुअली लास्ट ईयर से लुत्फिया ने अपना वीज़ा सब बंद कर दिया है. यू डायरेक्टली गेट योर TRP. TRP इज़ लाइक टेम्पररी रेजिडेंस परमिट विच इज़ बेसिकली, जब मैं आई थी आई हैड टू गेट माई वीज़ा, आई हैव अ स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट. बट जो सब स्टूडेंट्स लास्ट ईयर आए उनके पास कोई भी ऐसा स्टैम्प नहीं है लाइक वीज़ा का. दे डायरेक्टली गॉट द रेजिडेंस कार्ड, लाइक टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, जिसमें तुम्हारा नेम होता है, एक पर्सनल ID कोड होता है, तुम स्टूडेंट हो लिखा होता है एंड कब तक वो वैलिड है ये सब लिखा होता है. मैं जब आई थी तो मैंने 80,000 पे किया था वीज़ा कंसल्टेंट को मेरा ये सब प्रोसीजर हैंडल करने के लिए. एंड आई गॉट माई वीज़ा इन अ वीक विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. एंड मेरा होल प्रोसीजर वॉज लाइक अंडर लाइक इन 20 days और समथिंग. तो इट वॉज नाइस. बट लाइक अगर मैं अब सोचूँ, अब मेरे को लाइक इतना नॉलेज है, आई वुडंट गो फॉर माई सिस्टर और माई फ्रेंड टू ए कंसल्टेंसी. आई कैन जस्ट डू इट बिकॉज इट्स लाइक रियली ईजी. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आई कैन मेक अ फुल वीडियो ऑन इट इफ यू वॉन्ट. And when you go to the visa thing, what's the thing, like now it's not visa, it's like it's migris.com, which is the place like in Lithuania जहाँ पे तुम्हारा ये सब कुछ हैंडल किया जाता है. but you have to still go to Delhi to submit all the biometrics, all the information and everything. but like it's not very difficult, you can still do it on your own. Just look at the like beautiful ride. Okay, I will say that's all for this video. And if you have any other questions, just let me know and I will try to make one. Okay, bye bye.